Can you see my slides? Yes, I can see you, Iram. Okay. And the ones who have joined right now, let me just go through the things. I'm Ikra Khatak, and I'm Developer Student Club lead from Comsys University Islamabad at the campus. And we have Idam Zahra with us, who is a GDG lead in Islamabad, that is GDG Cloud. And thank you so much, Idam, for joining us. We are very privileged and very honored that you joined us. And Idam is today's speaker. I hope you're, going through the Bootcamp 101, and you all are seeing how interactive these sessions are. So urging you to make this session interactive. This session is about managing the day, how you should manage your day, and how you should make the most of your day. So Iram is here for us to uh, go through things. How should we do it? Because Iram has a very good idea about all these things. And I'll just hand over the mic to Iram, and we'll just go through this. Okay, Iram, you can introduce yourself, and I'll just mute me. Okay, thank you so much, Ikra, for having me here. We are honored and humbled. मैं बीच में जब बोल रही होंगी whenever जब मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो तो please do let me know. Okay? Sure, I will. मुझे questions नजर आने शुरू हो गए अभी से. That's Okay. awesome. Okay, so hello everyone. I hope you can hear me. So this is Iram Zara, and I am currently working as a data scientist with The Entertainer. It's a UAE-based company, and I completed my bachelor's in software engineering from International Islamic University in 2016, and have been working in industry for more than 4 years. I started my career with a startup as co-team member and a computer vision developer right after my graduation. And after that, I joined Red Buffer as a machine learning engineer. And recently, I switched to the Entertainer as a data scientist. So in these 4 years, I have gained experience from startup ecosystems to SMEs to corporates. And outside my day-to-day job, I love to build communities, empower others, and make initiatives to bring diversity and equity in our communities. And to fulfill my passion of empowering others, I am working with Google developers as a lead for GDG Cloud Islamabad, and also I'm also serving as a Women Tech Maker Ambassador, which is also an initiative by Google. I'm a certified I'm Remarkable facilitator, and I recently got promoted to Gold tier. I am also level 8 Google Local Guide. I hope you all know about the Local Guide program. If you don't know, you should actually Google it out because it's like really interesting program by Google. And other things that I love to do apart from my work are networking, public speaking, as I'm doing right now. And I love to paint, and whenever I get free time, that's what I do. So today, we will be discussing some, tips and tricks about how we can better manage our day. As you all know, time is a variable, and it is very hard to control and monitor it, right? And once time has slipped away, you never get it back. And for companies, they say that time lost equals dollar lost, but I would say that it's this statement holds true for everyone. आप students हैं या आप job कर रहे हैं या आप work यूनिवर्सिटी में किसी भी लेवल पे किसी भी जगह पे आप जाए, आई थिंक टाइम आपका जो ज़ाया हो जाता है वो वापस नहीं आता है. इट इज़ इक्वल टू योर मनी लॉस्ट और डॉलर लॉस्ट, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कस सम टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपना दिन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं. बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स, मैं एक चीज़ आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग दैट जो भी टिप्स और ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगी, ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर किसी के लिए वर्क करें, राइट? बिकॉज एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. हर किसी की आदतें, हर किसी का काम करने का पैटर्न डिफरेंट होता है. तो यहाँ पे इससे आपको करना क्या होगा, यू जस्ट कीप नोटिंग द पॉइंट्स जो आपको लगता है कि आपके फ़ायदे के लिए काम आ सकते हैं. क्योंकि
टाइम को मैनेज करना कोई हार्ड एंड फास्ट टूल्स नहीं हो सकते कि आप यही करेंगे तो आपका टाइम मैनेज होगा, राइट? यू जस्ट हैव टू एडजस्ट योर रूटीन, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है. सो जस्ट कीप noting down the points that you think that are going to help you, right? So पहली चीज़, time flies, right? Time flies. It's like always. Time ऐसी चीज़ है जो पता नहीं कहाँ जाता है. We all have 24 hours in a day, but why does it seems that some people are able to get the most out of every minute of the day? Believe it or not, they don't have the power to slow down the time. They do, however, know how to properly manage their time. इस वजह से उनका टाइम नहीं उड़ता और हमारा टाइम उड़ जाता है. Like it seems like time उड़ गया, right? So let's discuss the next thing. Have a time check. इसका क्या मतलब हुआ? Like you need to know exactly how you spend your time. ये सबसे पहली चीज़ है. आप टाइम मैनेज करना उसको आप कैसे करेंगे वो बाद में आती है बात. But first thing you need to know is that आपका टाइम जाता कहाँ है, right? In a, like for example, in an office sitting, you should know the tasks that are stealing your time. Then you can do something about it. For example, like you may be spending an hour on emails instead of completing important projects, right? आप emails लिखे जा रहे हैं और आपका जो actual काम है वो रहता जा रहा है और आपका सारा काम एंड पे ही ईमेल्स ले जाएगी और मे बी आपने इतने सारे टाइम में सिर्फ 2 या 4 ईमेल्स लिखे एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप लोग यही सोच रहे होंगे कि टाइम किधर गया मेरा, मैंने तो कुछ किया भी नहीं और सारा टाइम निकल गया. So knowing exactly where your time is going can help you make decisions about delegating tasks or buying some software जो आपको रिमाइंड कराता रहे या आपकी कोई किसी किस्म की टू डू लिस्ट हो जो आके हम अभी डिस्कस भी करेंगे कि वो किस तरीके से हो सकता है. तो इस तरह की चीज़, इस तरह के डिसीजन लेने में आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप सबसे पहले ये होगा कि आप एक टाइम चेक रखें. फिर उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज स्टडी और वर्क स्पेस. ये इसलिए क्योंकि आजकल एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम होम. आई एम वर्किंग फ्रॉम, लाइक इट्स बीन 6 months. मैं 6 महीनों से ऑफिस नहीं गई हूँ एक भी दिन, तो मैं घर से ही काम कर रही हूँ. जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है सबकी यूनिवर्सिटीज़ का भी यही हिसाब है, सब बच्चे घर से बैठ कर जो है वो काम करें. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपने घर में किस किस्म का सेटअप रखा हुआ है, राइट? सो वर्किंग फ्रॉम होम और स्टडिंग फ्रॉम होम कैन टेक quite a lot of adjustment. So it's useful to have, you know, some practical tips that will make the transition to a different style of study or working as straightforward as possible. So यहाँ पे भी everyone has a different home environment, so it's difficult to make hard and fast rules here. However, there are certain basic guidelines that about study spaces that should apply to most of the students or to those who are working. So you know, what you should do is to try to keep whatever study space or working space you have neat and tidy. It's very important. This will help you stay calm and feel well organized and make it less likely that you will lose things. Like आपको जो है एक sense of सुकून मिलता रहेगा कि हर चीज़ साफ है. आई थिंक इट्स सेम फॉर एवरीवन. ये अपनी जगह को आप अगर ऑर्गेनाइज रखते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं. हर चीज़ मैस बना हुआ हो तो यू नो समटाइम्स मेरे साथ ऐसा होता है, मेरी टेबल पे अगर ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई तो मैं काम करने के बजाय उनको क्लियर करना शुरू कर देती हूँ बिकॉज यू नो मेरा दिमाग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता. तो आई थिंक इट होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीवन. So if you can change your workspace to provide some variety, but avoid trying to work when lying down. अच्छा, अब एक चीज़ आती है पहले तो कि आप अपनी जो वर्क स्पेस हो उसमें वैरायटी लाते हैं कि ये किस तरीके से आप अपनी टेबल के ऊपर, मेरी टेबल के सामने वॉल है, लाइक यू कांट सी इट बट इट्स इन फ्रंट ऑफ यू. उस पर कलरफुल पेंटिंग्स लगी हैं जो मैंने खुद की हुई हैं. कुछ मैंने कार्ड्स और इस तरह की चीज़ें मुझे पसंद है, लाइक मैंने अपनी वॉल सेट की हुई है. उसके बाद कुछ पेंटेड गमले पड़े हुए हैं. इट्स लाइक दिस. सो काफ़ी कलरफुल से, इट्स नॉट बोरिंग. तो मुझे यहाँ पे बैठ के सुकून रहता है. देन देयर इज अ विंडो इन फ्रंट ऑफ माय टेबल, तो मेरी टेबल मेरे हिसाब से फिट है. सो इफ यू कैन चेंज योर वर्क स्पेस लाइक दैट, लाइक अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, जिस तरह भी आपको अच्छी लगती है, यू शुड एक्चुअली कीप योर वर्क स्पेस लाइक दैट. उसके बाद आता है अवॉइड ट्राइंग टू वर्क व्हेन लाइंग डाउन और इन अदर सिचुएशंस लाइक वेयर यू आर रीडिंग एंड राइटिंग and it's tricky there or your posture is uncomfortable or slouched. उससे क्या होगा? So let me give you another example. वो भी मेरी पर्सनल एग्जाम्पल है. मैंने कैसे ये बात सीखी. स्टार्ट में जब वर्क फ्रॉम होम करना शुरू किया था मैंने, तो मेरे पास ये होता था कि
मैं सोफे पे बैठती थी ड्राइंग रूम में, और वहाँ पे काम करते करते कभी मैं लेट जाती थी, कभी मैं बैठ के काम करना शुरू कर दिया, कभी उल्टा लेके, आई डोंट नो, लाइक आई मीन आई मैंने हर तरह के पोस्चर में काम किया। इससे क्या होता था, मुझे नींद आने शुरू हो जाती थी, बीच में मैं सो जाती थी थोड़ी देर के लिए, फिर उठ जाती थी। काम स्लो होता 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 और मुझे शाम के टाइम एहसास होता था कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग, पूरा दिन गुजर गया, मैंने कुछ किया नहीं है। ऑफिस में प्रोडक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा थी, घर में कुछ हो नहीं पा रहा। तो फिर एक्चुअली मैंने टेबल तब खरीदा था, मैंने चेयर खरीदी, लाइक आई सेट अप माई वर्क स्पेस, और उस दिन से कॉन्स्टेंटली मेरी टाइम मैनेजमेंट बेहतर होती जा रही है। आई फील लाइक मतलब मैं अपने टेबल पे आके बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हाँ मैंने अब काम करना है। इट इज सेम फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। आपकी जो भी स्कूल की या आपकी यूनिवर्सिटी की टाइमिंग्स हैं, क्लासेस हैं, यू नीड टू सिट समवेयर जहाँ पे आपका टेबल, अपना जो भी वर्क स्पेस या वर्क कॉर्नर बनाया आपने, आप उस पर आके बैठें, उस पर आके टाइम में ये आपके दिमाग को क्लास वाली फीलिंग्स आएंगी जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट मोर, और आप बोर नहीं होंगे, आपको नींद नहीं आएगी। वो सिर्फ क्लास ले रहे हैं, आप अपना यूनिवर्सिटी का कोई काम कर रहे हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो वर्क स्पेस है या जो स्टडी स्पेस है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड हो। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो। If you share a space with other people, try to find a quiet area and let the others know you are working so they can keep disturbances to a minimum. Like for example, अब मैं और मेरी बहन ये रूम शेयर करते हैं जिसमें बैठी हूँ, तभी मैंने उसे बाहर निकाल दिया। आई विल, बिकॉज आई थॉट कि वो शोर करेगी, उठ के इधर उधर चले फिरेगी, तो इट वोंट लुक गुड। खैर अगर आप बाहर नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट अपने घर वालों को या जिसके साथ आप रूम शेयर कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली टेल देम कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ या मेरी क्लास हो रही है, सो यू नो कीप द डिस्टर्बेंसेस टू मिनिमम। तो इट वर्क्स एक्चुअली। उसके बाद आती है आपकी डिस्ट्रैक्शंस की बात है। डिस्ट्रैक्शंस ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे एक प्रोक्रेस्टिनेशन होती है एक चीज़, ठीक है, आप लेजनेस आ गई आपके अंदर। दिस इज ऑलवेज द एनिमी of effective study or work, and it's an even bigger danger when working at home with the temptations of social media, Netflix, Twitter, Instagram and so on. मैं खुद Instagram बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता था कि मेरा Instagram पे कितना ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको पता नहीं चलता, 1 घंटा गुजर जाता है। So for a start, move your phone some distance away so it's not instantly available, right? So use it as a treat when you have achieved a particular task rather than as a constant companion. आप अपना फ़ोन थोड़ा दूर रखें अपने आप से, और आप आई थिंक घंटे के बाद या 1.5 घंटे के बाद उसको 10 या 15 मिनट के लिए फ़ोन को उठाएं एंड अपना टाइम चेक रखें उसके ऊपर भी, और 10-15 मिनट के बाद फ़ोन वापस रख दें, राइट? ये इसको कहते हैं लाइक यू कुड ट्राई यूजिंग द पोमोडोरो मेथड। उसमें क्या होता है, व्हेन यू वर्क फॉर लाइक 25 मिनट्स और सो, आप 25 मिनट से अपना 1 आवर का या 1.5 आवर का भी रख सकते हैं। उसके बाद देन यू कैन अलाउ योर सेल्फ 5 मिनट्स ब्रेक टाइम और फ़ोन टाइम, ठीक है। फ़ोन नहीं आपने यूज़ करना है तो ब्रेक टाइम में आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक वट एवर यू वांट टू डू। सो ये एक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे आप अपना वर्क भी बैलेंस कर सकते हैं, और अगर आपको फ़ोन की बहुत ज़्यादा आदत है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट इन अ लिमिटेड टाइम। सो उसके अलावा क्या हो सकता है, नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स में हेल्प यू कॉन्सेंट्रेट, और यू कुड लिसन टू सम। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम एक्चुअली कभी कभार यूँ होता है कि मोबाइल तो आप कह रही हैं सबसे बड़ा कंपेनियन है, सही बात है, लेकिन मोबाइल से दूर रख के भी ना, तो आपको पता है मल्टीपल टैब्स होती हैं लैपटॉप पे, आप यहाँ पे भी इंस्टा खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं, दोबारा सोशल नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे सेल्फ कंट्रोल भी होता है, वो भी आपने करना है। आपने नहीं खोलनी है टैब। आप फ़ोन वापस, आप जब आप फ़ोन दूर रखते हैं, लाइक मुझे अगर खुद पर्सनली फील हो कि मैं फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मतलब आप और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। जब टाइम ज़ाया करने की बात आती है तो सब एक जैसे होते हैं, इवन मैं भी ऐसे ही हूँ, ठीक है। लेकिन जो चीज़ें मैंने खुद सीखी हैं, मैं यहाँ पे वो चीज़ें लाइक अभी लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आई केप्ट गूगलिंग आउट के क्या क्या चीज़ें मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपनी लाइफ में, जिससे मैं अपना टाइम बेहतर तरीके से मैनेज कर सकूँ, मैं डिस्ट्रैक्शंस को दूर रख सकूँ। क्योंकि हम लोग को इतनी आदत है ये फेसबुक वगैरह यूज़ करने की। आप सही कह रहे हो कि आप टैब्स और ये सब चीज़ें खोल लेते हैं, बट उसका क्या तरीका होता है, आपने अपना फ़ोन दूर रखा है, अब आपको इतना अपने पे कंट्रोल तो करना है ना कि आपने टैब नहीं खोलनी, आपने फेसबुक नहीं खोलना। इवन आपका दूर पड़ा हुआ फ़ोन अगर बज भी रहा है तो आपने उसको नहीं उठाना। आपने अपना जो भी विंडो रखी हुई है 25 या 30 मिनट्स की या 1 घंटे की, आपने फ़ोन उसी टाइम के बाद ही उठाना है। उसके बाद क्या होगा, शुरू में ऑब्वियसली मुश्किल होगा, शायद शुरू में 2-4 दफ़ा आप अपना ये रूल ब्रेक भी कर लें खुद,
ठीक है, लेकिन आहिस्ता 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 क्या होगा, आपको उस चीज़ की आदत पड़ती जाएगी, तो ये एक तरह से रिवॉर्ड सिस्टम बन जाता है कि अगर आप 1 घंटा काम करेंगे तो आपको फ़ोन मिलेगा, योर आपका जो माइंड है वो इस हिसाब से ट्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो शुरू में कुछ भी आसान नहीं होगा, मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि ये चीज़ मैंने बताई हो या आप कल करना शुरू करेंगे तो वाओ आपके जो है वो कोई 100% रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। कोई भी रूटीन हो, कुछ भी हो, उसको एडजस्ट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अपनी हैबिट्स चेंज करने में टाइम लगता है, राइट। और ये आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सेम है, मतलब मुझे भी इतना ही मुश्किल हुआ होगा जितना आप लोगों को मुश्किल होगी। मैं भी उस तरह टाइम जाया करती थी जिस तरह आई थिंक मोस्ट पीपल करते, मोस्ट जो स्टूडेंट्स है या जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो करते होंगे, मतलब मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ यहाँ पर। आई एम जस्ट शेयरिंग माई एग्जाम्पल्स विद यू, ताकि जब लाइक रियल एग्जाम्पल बजाय इसके कि मैं कहीं और से उठाऊँ, मैं आप लोगों को अपनी एग्जाम्पल्स इसलिए दे रही हूँ कि हाउ डिड आई मैनेज टू मैनेज माई टाइम एक्चुअली, कि मुझे किस तरीके से पता चलता रहा कि ये चीज़ मेरे अंदर प्रॉब्लम है। ओके, फर्स्ट आई आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, तो फिर उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सॉल्व करना शुरू किया। अभी भी कभी कभार मैं अपने रूल्स ब्रेक कर लेती हूँ, बट ऐसा अब कम होता है, शुरू शुरू में हर 2 दिनों बाद हो जाता था। तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है, और मतलब ये नेचुरल है, बट यू नीड टू कंट्रोल दैट, तभी टाइम मैनेज होगा। लेकिन इट्स नॉट अ मैजिक वॉन्ड कि आपने चलाई और आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो गया। तो थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा अपने अंदर जो है वो काबू रखें तो आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा। आई होप माई आंसर हेल्प यू। अच्छा, यस एक मैम। चीज मैम एक और जी बात है जी। कि जिस तरह आप कह रही हैं कि आप गूगल करती हैं हम्म समटाइम्स, हम्म जी जी। समटाइम्स आप गूगल करती हैं कि किस तरह टाइम मैनेज करना है और समथिंग लाइक रिगार्डिंग योर पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। तो मैम हाँ, हमारे पास तो उसका भी टाइम नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता लग रहा हम कर क्या रहे हैं, और हमारे पास ये भी अच्छा, टाइम नहीं कि हम ये उस चीज़ को गूगल कर सकें। तो इस मैंने चीज़ को जो भी अगर आप मैंने एड्रेस करें। ठीक है, मैंने आपको जो पहले बताया था कि कीपर टाइम चेक वाली चीज, उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि पहले आप अपने आप को तो जाने ना, आप करते क्या हैं। टाइम मैनेजमेंट तो आती है उसके बाद की बात है, हर बंदा डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह सकती कि यार आप सुबह के टाइम जो फोन यूज करते हैं वो ना करें, हो सकता है आप सुबह के टाइम फोन ना यूज करते हो। सबसे पहले टाइम चेक, इसका मतलब है कम से कम 2-3 दिन तक अपने आप को मॉनिटर करें, कीप नोटिंग डाउन योर हैबिट्स। आप लोग सुबह उठने से लेके रात सोने तक आप जो जो काम करते आए हैं वो उसको लिखें, उस पर आपने कितना टाइम स्पेंड किया वो आप लिखेंगे, और उसके बाद आपको पता चलना खुद शुरू हो जाएगा कि आप कहाँ कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं। उस हिसाब से आप अपना जो टाइम मैनेजमेंट का प्लान है वो उस हिसाब से बनाएंगे कि अच्छा यहाँ पे मुझे ये नहीं करना, ठीक है। बाकी जो टिप्स हैं टाइम मैनेज करने की, वो उसके बाद आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था तो मैंने इसको कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे मैंने इंस्टाग्राम में 2 घंटे लगा दिए तो यार इसको मुझे कैसे कम करना है, ठीक है। या मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था या मैं असाइनमेंट पूरी करने की कोशिश कर रहा था, मैं 2 घंटे तो असाइनमेंट ही कर रहा था, तो फिर असाइनमेंट कंप्लीट क्यों नहीं हुई, ठीक है। उस 2 घंटे में फिर आपने देखना है कि यार मैंने तो टैब्स खोली हुई थी, उस पर मैंने व्हाट्सएप यूज़ किया या उस पर मैंने फेसबुक यूज़ किया, अब मुझे ये नहीं करना। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद, जब अपने आप को पता चलता जाता है ना कि इंसान खुद क्या कर रहा है, फिर आप ज्यादा बेहतर तरीके से टाइम मैनेज करें। मैं अगेन आपको वही, इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि मैं क्या बता रही हूँ, आप ये कर लें, आप वो कर लें, आप वो कर लें और आपका टाइम मैनेज हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। यू नीड टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, कि आप खुद क्या कर रहे हैं, आप अपना टाइम किस तरह से जाया कर रहे हैं वहाँ। उसके बाद जाके आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक करके अपनी एक एक आदत को कंट्रोल करना है या खत्म करना है या कम करना है, ये आपके ऊपर है। फोन छोड़ दें, इंस्टाग्राम यूज ना करें, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना आहिस्ता आहिस्ता टाइम लिमिट करना शुरू कर देते हैं, जो काम ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अब इंस्टाग्राम अगर आपका 1-1, 2-2, 4-4 घंटे ले रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर। आपके एक, मेरे ख्याल है अगर आप पूरे दिन में भी 1 या 1.5 घंटा पूरे इंस्टाग्राम यूज करते हैं बहुत है। इससे ज्यादा अगर इंस्टाग्राम पे आपका टाइम जा रहा है या फेसबुक पे आपका टाइम जा रहा है तो आई थिंक इट्स टू मच, यू नीड टू कंट्रोल दैट। सो ये छोटी छोटी सिंपल चीजें होती हैं जो आपको नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी कि मतलब मैं इतना ज्यादा इंस्टा या इतना ज्यादा फेसबुक यूज कर रही हूँ। तो वो चीजें मुझे तब पता चलना शुरू हुई जब मैंने मॉनिटर करना शुरू किया, मैंने सोचना शुरू किया इस बारे में कि मैं क्या कर रही हूँ। तो जब आप ये सोचना शुरू करेंगे ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर आपको समझ आना शुरू होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ टाइम ज़ाया कर रहे हैं, कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या चीज़ सही हो रही है, क्या चीज़ किसी और तरीके से होनी चाहिए या बेहतर हो सकती है, राइट। तो यू नीड टू मॉनिटर योर सेल्फ फर्स्ट।
और हर दफ़ा अपना टाइम चेक रखें उसके अंदर कि कहाँ पे कितना टाइम लगा आपको। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ सबसे पहले मैंने मेंशन की थी, क्योंकि बगैर अपने आप को जाने आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, एनीथिंग एल्स और शुड आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ओके, ठीक है। अच्छा, यस मैम, एक चीज़ यू जो कैन मैंने मूव अभी मैम। आपको नॉइस कैंसलेशन हेडफोन्स और म्यूज़िक की बात की थी, तो उसमें एक और चीज़ मैं मेंशन करूँगी कि जो आपने म्यूज़िक सुना है वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक होना चाहिए, बिकॉज लिरिक्स टेंड टू ग्रैब योर अटेंशन, डोंट हैव, राइट? तो ये ना कि आप गाने सुनने बैठ जाएं, उसमें लिरिक्स चल रही हैं, उसके बाद आपको ख्याल आए यार हमें किसी ने कहा था म्यूज़िक सुनने से तो आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, ये क्या हो गया, ये तो मेरा घंटा वेस्ट हो गया है। ठीक है, तो मुझे ब्लेम नहीं करना आगे फिर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है स्टे इन टच। अब किस तरीके से रह सकते हैं, लाइक प्रीटी मच एवरीवन विल बी स्टेइंग इन टच विद देयर फ्रेंड्स और फैमिलीज। उस पर आप चाहे स्काइप के थ्रू करें, जूम के थ्रू करें, और सम अदर वीडियो टूल, राइट, or maybe chatting tool. So, but don't forget, you can also maintain contact with other students in your classes or doing the same courses as you use. ठीक है, और उसके ऊपर अच्छा आप सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। एटलीस्ट यू शुड मेंटेन proper contact with your classmates or colleagues if you're working, right? If you're working on same projects or same assignments, or if you're in the same course. You can share ideas, discuss assignments, test each other, और just share experiences, आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से मैनेज करें, एक दूसरे से टिप्स भी ले सकते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा मत शुरू कर देंगे आप सुबह से लेकर शाम तक चैट ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। You need to control that as well, but it's always a good idea to keep in touch with your classmates or colleagues. उसके अलावा इट्स लाइकली दैट योर टीचर्स विल आल्सो बी अवेलेबल रिमोटली, क्योंकि अभी सब रिमोटली ही पढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, सो आपके टीचर्स भी रिमोटली अवेलेबल होंगे। सो डू कॉन्टैक्ट देम विद क्वेश्चंस अबाउट योर स्टडी और वर्क। दे मे आल्सो बी विलिंग टू सेट एंड मार्क योर वर्क. Don't forget to check your school or college or website on a regular basis for updates and information, and please do follow their guidelines. मेरी अपनी बहन ने ये गलती की हुई है, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स या जो भी उसका कांटेक्ट पर्सन है उसको ज़्यादा चेक नहीं करती थी, शी मिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, फिर उसको डांट पड़ी है मेरे से, तो अब सीधी है वो। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। उसके बाद आता है मेक अ डेली टाइम टेबल या कोई टू डू लिस्ट होती है आपकी, ठीक है? Because it's easy to slip into a situation at home where work and leisure become blurred. Like आपकी कोई boundary line नहीं रहती है, because there is no change of environment, या school bus या आपकी जो school की bell होती है, home, or any of the other things that signify a change of activity or work can spill into leisure time, and leisure can leak into times where you should be studying. मतलब आपका कोई आप ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक स्टार्ट चेंज आता है, आप होम एनवायरनमेंट से निकल के एकदम से वर्क एनवायरनमेंट में या क्लासरूम एनवायरनमेंट में चले जाते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट से एकदम आप लोग वापस होम एनवायरनमेंट में आते हैं। जब एनवायरनमेंट चेंज होते हैं तो आपका माइंड उस हिसाब से रेडी हो जाता है। अब हम घर पे बैठे होते हैं तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, वर्क टाइम पे भी यही एनवायरनमेंट है, यही कमरा है, यही टेबल है, आपके एंजॉयमेंट के टाइम पे भी यही कमरा, यही टेबल है, ठीक है? तो इस वजह से जो आपका टाइम टेबल होगा इस प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज करने के लिए वो हेल्प कर सकता है यहाँ पे आपकी। सो टू मिनिमाइज दिस प्रॉब्लम, मेक योर सेल्फ अ डेली टाइम टेबल दैट ब्रेक्स अप द डे इनटू पीरियड्स ऑफ स्टडी और वर्क, राइट? सो मेक श्योर रेगुलर ब्रेक्स आर इंक्लूडेड, particularly a proper lunch break and some exercise if you're into exercising. अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो you can do a walk. अम्मी को दही ला दिया यार, ये भी वॉक हो जाती है। So list the things you want to achieve and then work at the best order. अब जो चीज़ें, जो काम आपने करने हैं उसको आप पहले लिखेंगे कि इस दिन के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे कंप्लीट करनी है। अब हर काम करने का कोई ऑर्डर होता है, कोई काम आपने पहले करना है, कोई काम बाद में करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्डर बेस्ट है। आपके कुछ टास्क होते हैं ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं या ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होते हैं, वो आप एंड पे करना चाह रहे हैं या वो आप पहले करना चाह रहे हैं। होता क्या है, मे बी एम टू डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट एंड फिनिश विद समथिंग क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि आपके जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है वो आपने पहले कर लिया और जो आसान और छोटे काम है वो आपने एंड पे कर लिया। And please don't get frustrated if you don't get through the full list. Just take the unfinished tasks towards, the forward to the next day. आपके काम नहीं खत्म हो पाए, कोई मसला नहीं है इसमें, आप उन सारे कामों को अगले दिन पे ले जाएं जो रह गए।
और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को बेहतर करना शुरू करें कि किस तरीके से आप अपने एक दिन के काम उसी दिन में कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो आप पहली टू डू लिस्ट बनाते हैं या जो पहला टाइम टेबल बनाते हैं उसमें आपने सब कुछ ही ऐड कर दिया कि मैं इस दिन में पता नहीं क्या क्या कर लूँगा। तो यू विल स्टार्ट टू नो योरसेल्फ कि आप एक दिन में कितना कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप अपना जो है वो टाइम टेबल बनाएंगे। सही है। And having a list is always a time saver. If you have a list, you will never have to wonder what's on the daily agenda or what to do next. आपने एक काम कर लिया उसके बाद आपको दूसरा काम करना, you will always know क्योंकि आपके पास लिस्ट होगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे इस चीज़ से. So indeed, a list keeps you focused and motivated, focused on feeling that sweet satisfaction every time you take off a task from your list, right? मैं तो जब कोई काम अपना 3-4 काम, तो मेरी दीवार पे एक्चुअली स्टिकी नोट्स लगे हुए हैं सामने, तो जब भी कोई काम आता है तो मैं तरतीब से अपने स्टिकी नोट्स लगाने शुरू कर देती हूँ और जैसे जैसे मैं वो काम करती जाती हूँ मैं वो स्टिकी नोट्स उतार के फेंक देती हूँ. सो जब मुझे कम स्टिकी नोट्स नज़र आ रहे होते हैं बाय द एंड ऑफ द डे या एक दो लगे होते हैं, मुझे सुकून रहता है कि हाँ, जो मैंने बहुत काम किया है. सो दैट्स व्हाट आई डू. मैं लिस्ट लाइक एक डायरी पे नहीं बनाती हूँ, मैं वॉल पे सामने स्टिकी नोट्स लगे हुए होते हैं, तो जैसे जैसे मेरे काम होते जाते हैं मैं उनको उतार के फेंक देती हूँ. कभी कभी मैंने पूरे वीक के भी कुछ काम लगाए हुए होते हैं जो संडे को करना है, ये मुझे सैटरडे को करना है, फिर वो काम करके मैं अपना स्टिकी नोट उतार देती हूँ वहाँ से. तो ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं. प्लस तो मैं जब यहाँ बैठी होती हूँ, मैं टाइम वेस्ट करने का सोच रही होती हूँ, तो मुझे सामने नज़र आ रही होती हैं लगी हुई, और जब मुझे नज़र आता है कि शिट इतना कुछ पड़ा हुआ है अभी, तो फिर खुद ब खुद मैं काम की तरफ वापस आ जाती हूँ. सो इट हेल्प्स. मतलब मेरी तो ये अपनी पर्सनल एग्जांपल बता रही हूँ कि स्टिकी नोट्स मेरे बिल्कुल मुंह के सामने दीवार पे लगे हुए हैं, तो वो मेरी कैसे हेल्प करते हैं. ठीक है. सो आप अपना टाइम इस तरीके से बचा सकते हैं. ओके. अब दूसरी चीज़ होगी कि आपका जो अब स्कूल इन्वायरमेंट में किस तरीके से स्टिकी नोट्स हो सकते हैं. आपके सारे डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, आप लोगों का असाइनमेंट्स होंगी, टेस्ट्स होंगे, टॉपिक्स होंगे जो आपको कवर करने होंगे. तो उस हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल सेट कर सकते हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से अपने स्टिकी नोट्स या अपनी डायरी के ऊपर जैसे आपको ज़्यादा बेहतर लगे उस तरीके से अपना टाइम टेबल बना के उसको किसी ऐसी जगह पे रखें जो आपको हर वक्त नज़र आता है, और फिर आप अपने टॉपिक्स या अपने असाइनमेंट्स ख़त्म करते करते उनको टिक करते जाएं. और जब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज़ उसको एक दफ़ा देख लें दोबारा. तो हो सकता है कि आपको लगे कि वो शिट इतने ज़्यादा काम रहते हैं तो मुझे अभी ये बंद कर देना चाहिए. और इसमें डिस्ट्रैक्शंस भी हो तो बाकी किसी भी किस्म की आपके आसपास लोग भी हैं तो आपको हमेशा एहसास रहेगा कि मेरा बहुत काम पड़ा हुआ है, क्योंकि काम आपको सामने नज़र आ रहा होगा. अच्छा, उसके बाद आती है सेट अ टाइम लिमिट. वो किस तरीके से करनी है आपने. सेटिंग अ टाइम लिमिट फॉर एनी टास्क कैन बी फन बिकॉज किस तरीके से हो सकती है. इनफैक्ट इट कैन बी लाइक अ गेम. Some companies actually divide employees into groups, and the groups that finishes a project or task first gets a reward. So you can apply this principle to any task or your assignments or your study timetable. Set a definite time limit, such as like an hour or two, then try to finish the task within the allotted time and feel the excitement as you do it. और उसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आपका जब टास्क कंप्लीट हो जाता है तो एज अ रिवॉर्ड what you can do, you can give yourself a phone time और फेसबुक टाइम और नेटफ्लिक्स टाइम, राइट. ये आप कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये आपका काम भी होता रहेगा और आप बोर भी नहीं होगे और आप अपना नेटफ्लिक्स या फ़ोन टाइम सब चीज़ें जो आराम से खुद से साथ साथ यूज़ कर सकते हैं. तो अच्छा, उसमें एक सजेशन है, ये स्टार्ट विद योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क. जो एज अ सजेशन मैं आपको देना चाह रही हूँ, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी. अगर आपको इससे अदरवाइज लगता है तो आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क जो हैं वो पहले मॉर्निंग में कर लूँ, right? So I would suggest do your most important tasks in the morning. All those stressful tasks, the big bulk of your work, the hardest tasks, do them in the morning. The reason is simple because you have the most energy in the morning. So you will be able to tackle the task efficiently and competently. Plus the feeling of accomplishment at getting the most important stuff done first will make the rest of the day much 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 better. आपको खुशी रहेगी यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, बहुत मुश्किल काम था, वो मैंने कर लिया. होता है कि सुबह के टाइम एनर्जी लेवल्स आपके ज़्यादा होते हैं. अब कुछ लोग आएंगे कि हम रात को बेहतर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. वेल यू कैन डू दैट अगर आपको वो चीज़ सूट करती है. पर जो लोग काम करते हैं, लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो कभी कभार इस तरह होता है हमारी डेडलाइंस ऑफिस टाइम के अंदर होती हैं, तो मैं ये नहीं कर सकती कि मैं आपको हेलो मैं रात को काम करके दूंगी, तो मुझे फिर सुबह ही करना पड़ता है.
तो रात को टाइम से सोएं, सुबह टाइम से उठें, और आपकी जो एनर्जी सुबह है उसको ज़्यादा मुश्किल, ज़्यादा बड़े काम करने में यूज़ करें, और बाकी का दिन आपका वैसे ही अच्छा गुजर जाएगा। अगर सुबह सुबह आपके 2-3 मुश्किल काम हो जाए ना, लाइक पर्सनली आई फील दैट सुबह सुबह 2-3 मुश्किल काम हो जाए तो पूरा दिन ऐसे गुजरता है जैसे मुझे कुछ नहीं करना, सब सुकून हो गया। सो यू नो, आपको जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और जो खुशी मिल रही होती है ना, वो पूरा दिन वैसे ही आपका स्मूथ गुजार देती है। उसके बाद आता है फोकस ऑन वन टास्क एट ए टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव चूजन टू डू अ टास्क, सी इट थ्रू टू द एंड, फिनिश इट, avoid doing half work, which means abandoning your current task and doing something else entirely. इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कि आप एक काम कर रहे थे, उसको बीच में छोड़ा और दूसरा कुछ शुरू कर दिया। ठीक है, आप एक रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, आपने बीच में उसको छोड़ा, पूरी कंप्लीट नहीं हुई, और आपने ईमेल्स देखते शुरू कर दिए, फिर आपने ईमेल्स के रिप्लाई करने शुरू कर दिए, तो ये एक तरह की बैड टाइम मैनेजमेंट है। इससे आपका जो टाइम ईमेल पे वेस्ट हो रहा है, एंड पे क्या होगा कि आपका जो एक्चुअल काम रिपोर्ट राइटिंग का था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ और आपका सारा टाइम भी गुजर जाएगा। तो आप अपना बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन भी लूज कर देते हैं, और आपका जो मोमेंटम है वो भी टूट जाता है काम करने का। मेरा तो कंसंट्रेशन लेवल ऐसे करके टूटता है। मैं काम कंसंट्रेट करके कर रही हूँ, अगर मुझे बीच में कोई दूसरा काम करना पड़ जाए तो मुझे नए सिरे से अपने आप को पूरा रेडी करना पड़ता है वो काम दोबारा शुरू करने के लिए, तो उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। तो बेहतर ये है कि अगर कोई ईमेल है, कुछ है, आपको रिप्लाई करना भी है, कोई भी ऐसा काम है, तो आप पहले अपना वो काम ख़त्म करें, उसके बाद वो वाला कर लें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो काम आपने शुरू किया उसको ख़त्म करें विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी ब्रेक्स। उस काम को ख़त्म करने के बाद ब्रेक लें, वो किसी भी किस्म का हो। ठीक है। उसके बाद है जी, मेक सम चेंजेस इन योर स्केड्यूल्स। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज़ होगी, यहाँ पे मैंने इसलिए डाला था, लाइक इफ़ यू समटाइम ऐसा होता है कि आप एनर्जाइज होते हैं, कोई दिन आपका ज़्यादा अच्छा होता है, सो इफ़ यू फील more energized at certain times of the day, change your schedule to embrace that, right? Make the most of your time. Some people are more energized in the morning while some are at night owls. So जब आप अपना टाइम, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई दिन जैसे संडे आ गया, मैंने बहुत ज़्यादा सैटरडे को रेस्ट किया था, तो अब संडे वाले दिन ना मुझे रात को नींद आएगी ना मुझे सुबह आएगी, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फिनिश मोस्ट ऑफ माई टास्क ड्यूरिंग दैट डे। तो उससे क्या होगा कि अपना स्केड्यूल जो है वो उस दिन चेंज कर लूँगी, मैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट कर लूँगी, मैं उस दिन ज़्यादा काम कर लूँगी। इसी तरह से होता है कि कभी कभार आप थके हुए होते हैं, यू फील टायर्ड, राइट, आप ट्रैवल करके आए या यू आर जस्ट नॉट इन द राइट मूड, तो आप उस दिन काम नहीं कर पाते। ठीक है, इट्स नेचुरल, हर इंसान का कोई ना कोई मूड होता है, कोई दिन आपका ख़राब होता है, किसी भी वजह से हो सकता है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो आप अपना स्केड्यूल जो है उसको चेंज कर लें उसी वक्त। आपने उस दिन कम काम किया तो नेक्स्ट डे का स्केड्यूल में आप ज़्यादा काम डाल दें। अगर आप किसी दिन आपको लग रहा है कि आपके पास आज ज़्यादा एनर्जी है या ज़्यादा टाइम है, आपको खुद वैसे फील हो रहा है कि आज मैं ज़्यादा काम कर लूँगी, एक मूड होता है इंसान का, कभी कभी इंसान बहुत ज़्यादा काम कर लेता है किसी दिन। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप उस दिन अपना टाइम टेबल एडजस्ट करके उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लें और ज़्यादा काम खत्म कर लें उस दिन। तो हमेशा अपना जो स्केड्यूल है उसको इतना फ्लेक्सिबल रखें कि आप उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकें। ठीक है, अब आती है अवॉइड परफेक्शन। ये बड़ा मसला है परफेक्शन वाला। मैं जब कोड लिख रही होती हूँ तो अमूमन मैं जब कोड करती हूँ तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है उसके अंदर। जितने भी जो प्रोग्राम लिखा वो नहीं चला तो उसको कमेंट कर दिया, उसके बाद उससे नेक्स्ट कर लिया, उससे नेक्स्ट कर लिया, तो मेरे कोड के अंदर कमेंट हुई काफ़ी चीज़ें होती हैं जो नहीं चलानी होती हैं। तो कभी कभार इस तरह होता है कि अब काफ़ी कम हो गया है, पहले तो होता था मैं इसको क्लीन करने बैठ जाती थी, बजाय इसके कि मैं आगे जाके अपना काम खत्म करूं, जो पहले वाला हुआ है उसको साफ करना शुरू कर देना। एक लाइन है, एक काम है जो मैंने 3 लाइनों में लिखा हुआ है, मैं उसको 1 लाइन में करना है। ठीक है, वो 1 लाइन में हो सकता है तो मैं उसको 1 लाइन में ही करने बैठ जाती थी, जबकि ये काम ठीक है, इट्स गुड प्रैक्टिस, बट ये आपको एंड पे करना चाहिए, बट एटलीस्ट अपना एंड गोल कंप्लीट कर लें। उसके बाद आप अपने काम को जितना परफेक्ट करना है आप कर सकते हैं। सो डोंट लेट द परफेक्शन बी द एनिमी ऑफ द गुड, राइट, एज दे से। So avoid over analyzing anything or everything you do. That doesn't mean be careless, however. Obviously ये मतलब नहीं है कि आप गलतियां करना शुरू कर दें अपने काम में. Do your best always, but perfection can drag you down. So don't think about it. जो लोग perfectionist होते हैं उनको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ. एक ही कीड़ा निकालने नहीं बैठना अपने ही काम में. पहले अपना काम खत्म करें and just move on.
So effective time management is ultimately a result of having the right attitude and commitment to your goals. Simple. आप जो इफेक्टिवली अपना टाइम तभी मैनेज कर सकते हैं, पहली बात है आप अपने आप को जानते हो कि आप क्या करते हैं, क्या चीज़ें गलत करें और क्या चीज़ें सही करें. उसके बाद आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू बी इन अ राइट माइंडसेट कि मुझे ये चीज़ें ठीक करनी है. ठीक है, आपने ये चीज़ सोच ली है, अपने टाइम टेबल बना लिया, या आपने कुछ टिप्स इसमें से ले ली और आपने सोचा कि यार ये मुझे फॉलो करनी है, तो ये जो आपकी कमिटमेंट है यहाँ पे काम आती है कि आप कितने कमिटेड हैं अपने जो भी आपने डिसाइड किए हैं, अपने जो गोल सेट किए हैं उनके साथ. अगर कमिटमेंट या एटीट्यूड नहीं है तो फिर ये प्रॉब्लम आपका टाइम मैनेजमेंट का नहीं है, ये कमिटमेंट इश्यूज हैं या ये एटीट्यूड इश्यूज हैं. उसको आपको पहले ठीक करना है और उसके बाद आती है बारी टाइम मैनेज करने की. ठीक है, तो जो लोग ये कह रहे थे, अभी मुझसे कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि हम टैब्स खोल लेते हैं इस तरह का, तो यहाँ पे कमिटमेंट की बात आती है और एटीट्यूड की बात आती है. अगर आपको अपने 100% सोच लिया है कि मुझे ये मेरे गोल्स है, मुझे अचीव करने हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता से आपको इतना कंट्रोल लाना पड़ेगा अपने अंदर कि आप लोग वो टैब्स ना खोलें. अपने अपना फ़ोन दूर रखा है तो उसको दूर ही पड़ा रहने दे. 1 घंटे के लिए दूर रखा है तो 1 घंटे के लिए दूर पड़ा रहने दे, अब उसे अपने हाथ नहीं लगाना. तो ये चीज़ें जो होती हैं, यहाँ पे कमिटमेंट आती है और ये हर बंदे की डिफरेंट होती है. कुछ लोग बहुत क्विकली हो सकता है कि अपना टाइम मैनेज करना शुरू कर दें, कुछ लोगों को हो सकता है कि महीना लग जाए, हो सकता है कुछ लोगों को 3-4 महीने के बाद समझ में आए, और कुछ लोगों को हो सकता है कभी समझ ही नहीं आए, वो टाइम वेस्ट करते रहे. सो इट डिपेंड्स कि आप कितने कमिटेड हैं, आपका कैसा एटीट्यूड है अपने गोल्स की तरफ. एग्जैक्टली मैं एक बात करना चाहूंगी, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की, इज द मेन की, लिटरली. यस, दैट्स ट्रू. ठीक है, उसके बाद कोई भी काम बंदा करने बैठा है, उसके लिए कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी जब तक बंदे के पास नहीं होती तो वो बंदा कर ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता. तो exactly. ये टाइम मैनेजमेंट इशू नहीं होता, ये फिर आपको अपनी हैबिट्स जो है वो दूसरी चेंज करनी पड़ती है, उसके बाद जाके आप टाइम मैनेज करना शुरू करते हैं. बिल्कुल. फिर आती है चीज़, think about like how you learn best. अब इस तरह क्या होता है, different students prefer different methods of learning, so it's worth thinking about what works best for you. ठीक है, for some the simple question answer format हो गया, फ्लैश कार्ड्स हो गए. फ्लैश कार्ड्स आई थिंक हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम यूज़ करते हैं, बट स्टिल ठीक है. या आप माइंड मैप बना लेते हैं अपना कॉपी पे, उसके थ्रू आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं. ठीक है, इफ यू आर मेकिंग नोट्स दैट यू आर गोइंग टू नीड टू रिकॉल लेटर, इट्स वर्थ कंसीडरिंग द कॉर्नेल मेथड. उसके अंदर क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग अ पेज, सो देयर इज अ मेन कॉलम, narrower column besides it, and a space at front of the page, right? You use the main column for main notes, the right hand column for headings or keyword and phrases, and the space at the foot for an overall summary. ठीक है, अगर ये अभी समझ नहीं आ रहा तो कॉर्नेल मेथड है, उसको आप गूगल कर सकते हैं. कॉर्नेल मेथड किस तरीके क्या चीज़ है. ठीक है, इस फॉर्मेट से क्या होगा, दिस फॉर्मेट अलाउज यू टू टेस्ट yourself easily, and the very process of creating the notes in this way forces you to think about the meaning of the content. ठीक है, उसके अलावा क्या टिप हो सकती है, if you are having to read or make notes on a textbook, check the start and finish of the chapter. There is often a summary or some sort of टेक्स्ट अवेलेबल, जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इस चैप्टर में शुरू के अंदर आपने देखा, एंड पे आपको एक समरी सी मिल जाती है कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ डिस्कस हुई होगी. इसके अलावा हो सकता है बहुत सारी ऐसी टिप्स हो जो मैंने डिस्कस नहीं की, बट वो आपको लगता है अगर आपके लिए बेहतर तरीके से समझ में आती हैं चीज़ें या बेहतर तरीके से आप लर्न कर सकते हो, तो प्लीज़ डू फॉलो दोज रूटीन्स, और उस तरीके से आप ये देखते हैं. बस बट अगेन यू नीड टू नो व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू. ठीक है, वो आप नोट्स लेते हुए जब आपकी क्लास हो रही होती है, या आप जब अपनी ऑनलाइन क्लास है, या आप अपनी फिजिकल क्लास के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं. तो किस तरीके से नोट्स लेने, किस तरीके से उसको फॉलो करना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर बंदे का दिमाग डिफरेंट होता है. तो आपको अपने हिसाब से, मुझे तो ऐसा लगता है कॉर्नेल मेथड इज़ लाइक वेरी गुड टेक्निक, बट स्टिल देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. आप उनको ट्राई कर सकते हैं, मे बी वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए काम करती हूँ. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच. उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो यू कैन आस्क अभी. आई होप टाइम मैनेजमेंट जो टिप्स थी कुछ हेल्पफुल हो आप लोगों के लिए. हेलो, कैन यू लिसन? I hope so, Iram. It was an amazing काफी और
जितनी आपने टेक्निक्स बताई है ना वो काफ़ी हेल्पफुल हैं एंड आई होप जो हमारे साथ अटेंडीज हैं उनको भी समझ आई होगी और उनको भी हेल्पफुल लगी होंगी ऐसी चीज़ें। इरम मैं एक बात करना चाहूँगी कि अब देखें हम पर्सनल लाइफ भी हमारी एक है जो चल रही है, ठीक है, और साथ में बैलेंस करना होता है वर्क लाइफ को। तो आप क्या समझती हैं जिस तरह आप भी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ के यू नो काफ़ी अच्छी तरह बैलेंस करती हैं? आपको मैंने फॉलो भी किया हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको देखती रहती हूँ। आपका वर्क स्पेस भी बहुत अच्छा है और पर्सनल लाइफ भी। अच्छा सो आई वाज होपिंग कि आप थोड़ा सा इस बारे में रोशनी डालें कि आप किस तरह इस चीज़ को मैनेज करती हैं। अच्छा यार, इस तरह से होता है कि पहली तो बात मैं कहूँगी कि आई डोंट नो, आई मतलब मैं टाइम देखो, जिस तरह मैं भी इन सबको कह रही थी कि आपको अपने आप को जो है ना वो आप क्या करते हैं पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक, अगर टाइम कहाँ जा रहा होता है, वो जब आप फिगर आउट कर लेते हैं ना चीज़ों को, फिर आपको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो चलो मैं घर बैठी हूँ तो मोस्टली टाइम फैमिली के साथ होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं था और ऑफिस जाना होता था तो मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होती थी, क्योंकि सुबह उठ के ऑफिस जाते थे, ऑफिस से मैं फ्री होती थी तो मैं पढ़ाती भी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनको पढ़ाना होता था। उसके बाद सुबह मैं जिम भी जाती थी और मैं सुबह 9 बजे घर से निकलती थी और रात को 10 बजे घर पहुंचती थी। बाकी सारा टाइम बाहर होता था मेरा, ठीक है, ऑफिस। दैट्स हेक्टिक रूटीन। उसके बहुत बाद हेक्टिक रूटीन। हाँ, उसके बाद सैटरडे संडेज को क्या होता था कि मेरी अपनी कम्युनिटी का काम इतना होता था कि मोस्टली सैटरडेज और संडेज जो है वो उसके अंदर निकल जाते थे। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं जो पूरे दिन की एक रूटीन होती है, ठीक है, आप उसको नहीं कर सकते खराब। लाइक ऑफिस तो जाना ही है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं एग्जैक्टली। उनको तो मुझे पढ़ाने जाना ही है, ठीक है। और जिम जो है वो मुझे अपने लिए जाना है। कुछ अपने लिए भी, उसको तो नहीं छोड़ सकते। हाँ, लाइक इट्स इम्पोर्टेंट ना कि कुछ अपने लिए भी तो करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो जिम जो था मैं अपने लिए जाती थी, ठीक है। उसके बाद कभी फ्रेंड्स के साथ मिलना हो तो मैं लेट नाइट घर वापस आती थी। लाइक अगर कोई मुझे कहता था ना यार आओ चाय पीते हैं या कुछ करते हैं, तो या तो मैं उसको विंडो में बीच में एडजस्ट करती थी जिम वाले टाइम में, और जो मेरे बच्चों के पढ़ाने के टाइम उसके बीच में, तो मैं 30 मिनट बस 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 मैं जा रही हूँ, और मैं मतलब बस भाग के गए और भाग के आ गए। या फिर मैं उसको ऐसे एडजस्ट करती थी ऑफिस से थोड़ा सा पहले निकल आए और आप पहुंच कर अपनी हाजिरी लगवाई और फिर आपने कहा ओके अब मैं जा रही हूँ जी, मैंने अगला स्टॉप पे भी आना है। तो आपको थोड़ा थोड़ा विंडोज आगे पीछे करके मैनेज करना पड़ता है। फिर बात आती है मेरे सैटरडे संडेज की। जो फैमिली है मेरी उनको पता है, क्योंकि मैं नहीं होती हूँ फ्री पूरा दिन, तो और उनको ये भी पता है कि वो मुझे कहेंगे भी तो मैं नहीं टाइम निकाल सकती, क्योंकि बिल्कुल लॉक होता है मेरा दिन। तो फिर सैटरडे संडेज में होता था कि जो भी प्लान रखा जाता था वो फैमिली मेरे से वैसे पूछ लेती है कि हम सैटरडे को रखें या संडे को, तो ये 2 दिन होते हैं। तो फिर उसमें सही। मोस्टली होता था कि जो कम्युनिटी रिलेटेड जितना भी कुछ होता था, फिर मैं सैटरडे संडे में से किसी एक दिन पहले ही प्लान कर लेती थी, और जो फ्री दिन होता था वो मैं फैमिली को बता देती थी कि हाँ इस दिन हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे घर में क्योंकि कोई और बंदा नहीं है तो हमें सारा कुछ खुद करना पड़ता है। लाइक आपको जो ग्रॉसरी करनी है, सब्जी लानी है, बिल्स करने हैं, जो कुछ भी है घर में, कुछ मेंटेनेंस का काम सारा खुद होता है, और मैं ड्राइवर हूँ घर में। ओहो। ये बहुत मसला होता है कि जब उसको गाड़ी चलानी होती है वो वैसे ही ड्राइवर बन जाता है, और अम्मियों को एग्जैक्टली। काम ना करो तो वो सीधे कहती है हमारा तो तुम कोई काम करती ही नहीं हो। तो फिर एक दिन आपने रखा हुआ होता है, वो मैंने घर के लिए रखा होता है। सुबह से बस उठने के बाद अब घर के काम कर लिए, मामा को मार्केट ले गए, सो दैट्स हाउ लाइक आई मैनेज यहाँ पे। दैट्स गुड। दैट्स हाँ, गुड। इतना आसान नहीं होता, बट आपको अपनी रूटीन के या हिसाब से बिल्कुल। पता चल जाता है कि आपको क्या करना है। एग्जैक्टली जब टाइम टू टाइम हर एक 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 घंटा आधा आधा घंटा भी प्रेशियस बन जाता है तो फिर टाइम नहीं निकाल सकता। बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि जब आप सोचना शुरू कर देते हैं ना इस बारे में कि मुझे हर इंसान को अपनी लाइफ में जो भी आपका डियरेस्ट मुझे टाइम देना है, एग्जैक्टली। तो खुद ब खुद आप टाइम निकालने के तरीके सोचने शुरू कर देते हैं और फिर आप टाइम निकाल लेते हैं। या सो मैम वन लास्ट क्वेश्चन मेरा। जी श्योर जी। श्योर। मैम जो आपने बताया था कि टू डू लिस्ट बनाएं, वो आप ना एक लिस्ट बना लें, उसके अंदर आप फुल प्लानिंग करें। मैम कभी कभार वो बहुत स्ट्रेसिंग हो जाती है, हेक्टिक हो जाती है जब आपसे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही होती, तो उस एंजाइटी या उस स्ट्रेस को किस तरह आप ओवरकम? जी, अच्छा, जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं, एक तो पहली बात है आपने एक दिन में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल लेनी, ठीक है। आप कम काम से स्टार्ट करें, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे पास दिन में ज़्यादा टाइम होता है, मैं काम पहले कर लेता हूँ, तो स्लोली आप उसके अंदर थोड़ा सा और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो आप टू डू लिस्ट बनाते हैं उसका एक स्केड्यूल, एक टाइम टेबल होता है कि पहले ये काम करना है, फिर ब्रेक लेनी है, फिर ये काम करना है, फिर इस तरह से करना है। वो चीज़ों को एडजस्ट करके देखें कि आपको क्या, कौन सा फॉर्मेट आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद अगर फिर भी कुछ काम आपके रह जाते हैं तो इट्स टोटली फाइन।
उसको अगले दिन पे ले जाएं, और जब अगले दिन का आप अपने स्केड्यूल बना रहे हो तो उन कामों को वहाँ पे एडजस्ट कर ले। इट्स टोटली फाइन, मतलब इसमें बिल्कुल ज़्यादा परेशान होने Yeah, we're only human, you know. हाँ, सबके साथ ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है कि कभी मैं नहीं कर पाती हूँ काम, और कभी कभी तो इतना फजूल होता है कि मतलब सिर्फ मूड नहीं होता इसलिए काम नहीं कर पाते। ऐसा ही होता है। ठीक है, तो बट इट्स टोटली फाइन। उसमें अगर आपका कोई टास्क कोई काम रह रहा है तो उसमें 2 चीज़ें नोट करनी है आपने। एक ये कि उसमें कोई आपकी नेग्लिजेंस रही है, कहीं टाइम वेस्ट किया था, अगर तो ऐसा है तो इट्स टोटली फाइन, अच्छी बात है, आपको पता चल गया है। नेक्स्ट चीज़, अब आपने उसको मिटिगेट करना है, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता से उसको एलिमिनेट करना शुरू करो। अगर आपने अपना पूरा टाइम प्रॉपर्ली यूटिलाइज किया फिर भी आपके टास्क रह गए, इसका मतलब आपने टास्क मतलब अपने ऊपर खुद ज़्यादा बर्डन डाला हुआ था। अपना टाइम टेबल जब नेक्स्ट बनाना शुरू करोगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता से अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना टाइम टेबल एडजस्ट करेंगे आप। तो ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने हिसाब से अपनी रूटीन को एडजस्ट करना है। आप अपनी रूटीन मेरे हिसाब से किसी और के हिसाब से नहीं एडजस्ट कर सकते। Exactly. और अगर एक रूटीन किसी और के लिए परफेक्टली चल रही है तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए भी चले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले अपने आप को देखें कि आप क्या करते हैं, फिर टाइम टेबल बनाने शुरू करें, और फिर उसके अंदर भी देखें कि वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उनकी रीजंस क्या है। फिर स्लोली उन रीजंस को मिटिगेट करने की कोशिश करें, आराम आराम से, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दी करने की। Right.